champions, mascots, Biotonians, welcome to our show, The World Around Us, presented and powered by the one and only Vedantu. I'm Vani, your host, dost and master teacher. I'm going to take you on an amazing journey through some very interesting pathways. But before we start, let me tell you, we have several layers of fun interactivity planned for only you. And we also have a fun fact zone. और आपको पता है आज के मेंटी क्विज में जो पहले 3 विनर्स होंगे उनको मेरी टी शर्ट्स वो भी हैंड साइन नोट्स के साथ मिलेगी. Isn't that super amazing? So you have to stay till the end of the session and I promise जो मैं पिछले 3 दिन में नहीं आई हूँ वो सारे super duper experiences लेकर I've come today. You are going to really enjoy this session. Just stay tuned. आपने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो आप आज देखने वाले हो. This entire team has worked so hard for you. Vedantu has created something for you which the entire world has not seen before. So दिल थाम के बैठिए, एक लाइक कर दीजिए. चलिए अभी मैं आपको अगले 20 seconds में एक स्पेसशिप के अंदर लेके जाऊंगी जो हमें ह्यूमन बॉडी में लेके जाएगी. It is going to be just so amazing. Just wait and watch. Before jumping directly into the content, let us chit chat a little. Chit chat करते हैं. आपने सोचा है लास्ट ईयर हमारे साथ कितना बुरा हुआ था ह्यूमैनिटी. Everything was banned for us. कुछ ऐसा हाल था ना हमारा. फोन बंद, फोन तो चलो क्या, पर ट्रैवलिंग बंद, कहीं आ नहीं सकते, गाड़ी वाड़ी सब बंद, घर से निकलना, दोस्तों के साथ मिलना, कहीं खाना खाने जाना सब बंद. The pandemic literally caged us inside our homes. But उससे पहले याद करो, all of us have traveled a lot, right? दूर नहीं, पास में ही सही, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, कहीं तो जाते थे. We could at least roam around freely. इससे याद आया, whenever we are on the roads, आपने हाईवेज पे ऐसे ट्रक्स तो देखे ही होंगे. यस, कितने बच्चों ने देखे? राइट है यू ऑन द चैट सेक्शन लिख दो. श्रेया, अदिति, प्रज्ञा, सार्थक, हरिओम, शहर, प्रांजलि, अदिति, सबने देखे. These are those huge lorries, right? Huge trucks carrying cargo. सारे cargos are stacked one upon the other जैसे आपको दिखाई दे रहा है. Can you see that? Right? कई बार तो ट्रक इनके सामने कितने छोटे हो जाते हैं. Sometimes in comparison to the amount of cargo they carry, the trucks look so small. So even in our daily transportation of various materials like furniture, food और आजकल तो specifically medicines, we have special vehicles. आपने वो दूध वाली देखी है? There are such special vehicles which are made for this purpose. ऐसे तो हम travel नहीं करते. कई लोग करते भी हैं, but it is not safe ना. It's not safe for this gentleman जो ऐसे travel कर रहे हैं. इस तरह के movements हम अपनी bikes और cars में नहीं कर सकते. Look at this. Even if you feel it is convenient, it's definitely not safe. है ना? Iram, Suhani, Krutika, what do you say? Transportation needs to be proper. Similarly, in our bodies, we have a complex but very interesting transportation system. पता है क्या है वो? चलो चैट पे बताओ. योगिता, सिंपल गर्ल, प्रिंसी, दीपक, एवरीबॉडी चैट पे बताओ क्या है वो ट्रांसपोर्टेशन. श्रेया, अर्पिता, यस, किसी को पता है? साउंड तो लो नहीं है बेटा, बिल्कुल सही साउंड है. यो लिख दो. एवरीबॉडी नोज. परफेक्ट, करेक्ट एवरीबॉडी. अनन्या ने बता दिया. इट इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. चलो, now I'll try to establish this analogy of the external and our body ka transportation system. But for that we need to go somewhere. So Arshia, Vinay, Aditi, कितने बच्चे रेडी है मेरे साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए? रेडी? ठीक है, चले फिर. So let's travel inside the human body. चैट पे आपको लिखना पड़ेगा hyperdrive activate. Woohoo! Oh my God! Yes! That was fast as per its name. Circulatory system मतलब कुछ तो सर्कुलेट हो रहा है ना? कुछ तो होगा. आपको क्या लगता है दीपक? क्या सर्कुलेट हो रहा है बताओ? What do you think is getting circulated? Now we know our daily bodily functions के लिए we need कौन सी दो चीजें चाहिए होती है? We need oxygen and we need nutrients.
पॉइंट ऑफ एंट्री तो नोज है फॉर ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड माउथ इज देयर टू ईट, राइट? ब्लड भी आएगा, बट हर किसी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए हाउ डू दीज एसेंशियल सब्सटेंसेस रीच देम? This is where our transport system, or as we know now, circulatory system. Yes, can you see it everybody? अगर ऐसे करके नहीं दिख रहा है तो फोन को स्ट्रेट कर दो, पूरा circulatory system जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ. See how it just magically came. आज के बाद एक भी चीज नहीं भूलेगी. Just see how I'm going to do the details of circulatory system. So look at this. देखिए इसे. It transports all the nutrients, gas, oxygen and carbon dioxide and other things like proteins, hormones, enzymes and waste products also. तो ये सारे nutrients और gases हो गया अपना कार्गो. और कैरी कौन करता है बताओ? यस, कौन करता है कैरी? Circulatory system. Let us now take a broader view first. So amazing. क्या लगा बॉडी के साथ अंदर जाकर? हाइपर ड्राइव आप लोगों के लिए भी एक्टिवेट हो गया. तो अब देखते हैं है क्या इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या है, व्हाट इज देयर. मैं अब आपको सारे ब्लड वेसल्स दिखाने वाली हूं बहुत डिटेल में. लाइक द हाईवेज, आवर इंटरनल रोड्स आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, एंड like the varying widths of the roads we travel through, blood vessels are of also varied diameters. कुछ मोटे से ट्यूब्स होते हैं, बाकी थोड़े पतले होते हैं, and then there are also many more जो बहुत पतले हैं. तो खुल गया जादुई पिटारा और निकल गया बाहर vessels. Look at these broad blue vessels. The blue ones are called the veins. आज के बाद नहीं भूलेगा. Yes, the blue ones are called the veins. And the red ones जो आपको दूर नजर आ रही है are called the arteries. But इससे भी थोड़े पतले वाले हैं. These thin red ones are called the arterioles, and the thin blue ones are called the venules, and there are even thinner tubes that connect these arterioles and venules. These are called the capillaries. याद हुआ? Yes, जो deoxygenated blood कैरी करेगा वो ये ऊपर वाली veins, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो आर्टरीज, राइट? मैं डिटेल में बताऊंगी, टेंशन मत लो, डिटेल में बताऊंगी, टेंशन मत लो. वेन्यूज, आर्टरीज, कैपिलरी. दोबारा बताती हूं. सो वी हैव द वेन्स, इनसे छोटे वेन्यूल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले आर्टरीज, और पतले वाले आर्टीरियोल्स, एंड सबसे पतले वाले कैपिलरीज. The broadest being the arteries and veins, and the thinnest being these capillaries. ये order याद कर लो, एग्जाम में बहुत मुश्किल है. And in between these are the venules and the arterioles. Now when we look inside these vessels, what do we see? बताओ, what do we see inside the vessels? Perfect. क्या आप सबको अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है? Write a yo on the chat section if all of you can hear me and see me loud and clear. One yo on the chat section and one like. अभी तो 1500 likes हो जाए. Everybody. See the amount of hard work we've made ताकि आप एक एक चीज इमेजिन कर सको. अब आगे देखना मैं आपको आरबीसी कैसे समझाऊंगी, प्लाज्मा कैसे समझाऊंगी. यो तो चैट सेक्शन पे यो आ गया, मतलब साउंड बिल्कुल परफेक्ट है, ऑडियो एंड वीडियो इज परफेक्ट. तो अब देखते हैं मैंने आपको क्या दिखाया. What do you see inside the blood vessel? Blood.
जो कि is nothing but the trucks and the lorries on the roadways. It transports nutrients and gases. Blood is a fluid connective tissue. It flows through the circulatory system. But what is it that the blood has? जो blood इतना कुछ transport करेगा, उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए. We already know the blood transports gases and nutrients. But how does that happen? Blood is not all liquid. जैसे 10 में लगता है कि liquid है, नहीं. Blood has various cells that carry these substances across the circulatory system. 45% याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है. 45% of blood is made up of different kinds of cells. और उस 45% में 44% ये जनाब है, क्या है बताओ चैट सेक्शन में, कौन है ये? These are the red blood cells. इनका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स. क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स. और याद रखिए एंड में मेंटी क्विज आ रहा है. मेंटी क्विज के पहले 3 विनर्स को टी शर्ट मिलने वाली है. राइट? तो ये रहे आरबीसीज. आरबीसीज का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स. राइट? और अब इनकी शेप पे पूरा डाइसेक्शन करते हैं. ये आरबीसीज क्या हैं? व्हाट आर दीज? रेड ब्लड सेल्स आर यूनिक सेल्स. कोई मुझे बता सकता है? झिलमिल, अवनीश, संतोष, प्रिंसी, श्रीजी, अमरू, आप बताओ इनमें क्या यूनिक है? क्या इनकी शेप नजर आ रही है? बीच में कुछ तो शेप में कॉन्केविटी सी है, कुछ ऑर्गेनेली से नजर आ रहा है. बताओ, चलो चैट सेक्शन बताओ. कॉन्केव डिस्क लिख दिया, नो न्यूक्लियस लिख दिया, आरबीसी लिख दिया, बाइकॉन्केव लिख दिया. वेरी गुड. अब बताती हूं. आई से यूनिक बिकॉज दीज सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस. We know that the nucleus is the brain of the cell, पर इन बेचारों के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है. तो अगर न्यूक्लियस ही नहीं है आरबीसीज में, हाउ डू दे फंक्शन? कैसे काम करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन. मेच्योर आरबीसीज पहले होता है. मेच्योर आरबीसीज शेड द न्यूक्लियस. Not only the nucleus, but they lose their mitochondria also. बट ये सेल बड़ा अजीब सा है. It sheds away its most important organs. ऐसा क्यों होता है? क्यों? अब दिखाती हूं एक फोटोग्राफ और फिर देखना. जब न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसकी शेप ऐसे बाइकॉन्केव है. The spherical shape of the cell changes. It compresses at the center and the RBCs get the typical biconcave shape. ये biconcave shape क्या है? अभी देखते हैं. क्या है ये biconcave shape? एक और एंगल से देखते हैं. दिख गया? जूम करेंगे फिर देखना. क्या है ये बाइकॉन्केव शेप? दिखा? ये कॉर्नर में मोटा है और बीच में से कंप्रेस्ड है. सो एट द कॉर्नर्स इट इज राउंड एंड स्फेरिकल एंड बहुत पतला सा है बिल्कुल बीच से. सेंटर में कॉम्प्रेस्ड एंड एंड्स में राउंडेड. इट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ डंबल. ऑल दीज मॉडिफिकेशंस टू अ सिंगल काइंड ऑफ सेल. Why? Yes, ये क्रॉस सेक्शन है. वो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, सेंटर में पतला, साइड से मोटा. राइट? डंबल शेप का बन गया. अब मुझे बताओ, अगर बीच में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये शेप कभी नहीं बनती, क्योंकि जगह ही नहीं होती इस कंप्रेशन के लिए. बट यू टेल मी, व्हाई डू यू थिंक दिस कंप्रेशन हैपेंस? सौमी, दीपक, अदिति, शांभवी, श्रेया, जिम्स, बताइए ये कंप्रेशन क्यों हुई? The change in shape increases the surface area of the cell. देखिए कितना बड़ा surface area है इसका. This is required to make a lot of space for our cargo. अभी कार्गो इस सेल के अंदर कैसे आएगा देखते हैं. न्यूक्लियस तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हट गया. फिर सेल के अंदर कौन आया इनकी जगह लेने? The cytoplasm is filled with hemoglobin. And what does this hemoglobin have? अब तो नहीं भूलेगा ना?
Write a you on the chat section. 1200 likes हो जाए for my entire team. Say we love Vedantu. Chat section दिख गया डिटेल में. ये वही सेल है जिसका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया हटाया और इसके अंदर बदले में मैंने क्या डाल दिया? हीमोग्लोबिन. What does the hemoglobin have? It consists of iron atoms. इस हीमोग्लोबिन के पास आयन है. The iron is red. That is how the blood gets the color red. समझ आया? Did that make sense? Let's look at it again. So we have iron that gives the color red to the hemoglobin. Hemoglobin is the major component of RBCs, and RBCs form a huge chunk of cells in the blood, and that makes our blood red. अब ये कैसे हो रहा है, ये हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ. अच्छा, तो ये हीमोग्लोबिन करता क्या है अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू द कलर विच इज रेड? हीमोग्लोबिन क्या करता है, अब यहां से स्टार्ट करूंगी और एंड तक चार्ट में समझाऊंगी. ये है लंग्स और लंग्स में है एल्वियोलाई. राइट, ये लंग्स है. लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई. हीमोग्लोबिन पिक्स अप ऑक्सीजन एंड गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जब ऑक्सीजन कैरी करेगा तो ये ऑक्सीजन लेकर बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नजर आया? क्या माइंड मैप बनाए? लिख दो. इजी टू अंडरस्टैंड. नो, लिख दो इजी टू अंडरस्टैंड. सो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये होता है लंग्स में. ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले लिया. अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा टिश्यूज में. सेल्स, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन. और सेल्स में जाकर ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा. ऑक्सीजन डिलीवर करके दे विल पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सचेंज. और कार्बन डाइऑक्साइड पिक करके इट विल बिकम द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. आया सब? वो देखो आपके सामने. ऑक्सीजन लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स को दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और क्या बन गया? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. समीक्षा, यस एवरीबडी गॉट इट? एवरीबडी परफेक्ट. समझ आ रहा है? हरिओम, वेरी नाइस. नो, डिड यू अंडरस्टैंड? एक्सीलेंट. दिस साइकिल रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन. ऑक्सीजन लेकर बॉडी को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स के थ्रू वापस निकाल देता है. दैट इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ गैसेस हैपेंस विद इन आवर सिस्टम. Hemoglobin combines with the oxygen to form oxyhemoglobin. When it combines with carbon dioxide, it forms carbamino hemoglobin. So we have the dumbbell-shaped cells with iron in them. Do we need anything more to describe the heavyweight champions of our system? अब हमें पता है कि RBCs end up being our very own trucks carrying the most precious cargo called oxygen. And to make sure that our heavy demands for these gases are met, the RBCs have evolved into non-nucleated biconcave cells. याद रखो, non-nucleated biconcave. कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, परफेक्टो जिलेटो तो कर रहे हो. विनय, डन? परफेक्ट. आपको पता है they form 44%. Got it? दृष्टि, विनय, अदिति, परमेश्वर, भक्ति, श्रेया, कीर्ति, जिम्स एंड रेणुका. ऑसम. बाकी 56% में क्या है? रोड्स पे सिर्फ ट्रक ही थोड़ी ना चलते हैं, और बड़ी गाड़ियां होती है. आप भी स्कूटी लेके घूम रहे होते हो, कोई साइकिल चला रहा होता है, कोई कार में होता है. दूसरी गाड़ी भी उसी टाइम पे उसी रोड में है. अपने सिस्टम में भी कुछ वैसा ही होता है. रेड ब्लड सेल्स के साथ ये तीन एक साथ होते हैं. सो रेड ब्लड सेल्स के साथ वो दूर वाले व्हाइट ब्लड सेल्स, ये पास वाले थ्रोम्बोसाइट्स, और वो बीच वाले रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स के साथ WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स ट्रैवल करते हैं. इज दैट क्लियर? Although they form a teeny tiny just 1% of blood, WBCs and thrombocytes are
completely different in function within the system. Thrombocytes का काम है clotting कराना, WBC का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट। बहुत टाइप्स के होते हैं। इन दोनों की कहानी मैं कभी और बताऊंगी, और एपिसोड्स भी तो करने। ब्लड में और क्या क्या होता है शेप्स याद कर लो इससे पहले कि जादुई पिटारा में ये वापस चले जाएं। तो we have seen the thrombocytes, we've seen the red blood cells, and we've seen the white blood cells. They account for 45% of the blood. What do you think is the remaining 55%? बताओ। Yes, एक लाइट से कलर का फ्लूइड होता है। बताइए, चलो मजा आ गया। बताइए, what do you think? सोचो। एक्सलेंट, क्या जवाब दिया है बच्चों ने, एक्सलेंट। तो ये जो फ्लूइड आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा विस्कस काइंड ऑफ फ्लूइड होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल दी प्लाज्मा। यस, ये जो थोड़ा विस्कस काइंड ऑफ फ्लूइड है, दिस इज व्हाट हेल्प्स द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स फ्लो। आप इसको ध्यान से देखो। कैन यू सी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आपको तीनों नजर आ रहे हैं। लेबल मैंने प्लाज्मा किया फॉर योर अटेंशन, पर ध्यान से देखो आपको सब कुछ नजर आएगा। एंड प्लाज्मा में सिर्फ सेल्स नहीं होते, प्लाज्मा इनके अलावा कैरी करता है प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंजाइम्स, hormones, waste like creatinine. So now you know that a single drop of blood has so many things within it. Isn't it wow? Oh, आज यहीं पर खत्म करते हैं, पर अभी हमारा क्विज बाकी है। बहुत कुछ दिखा दिया और अब ये लेक्चर्स रेगुलरली आएंगे। मैंने शुरू में ही कहा था, कीप अ नोटबुक एंड pen and take notes, वरना भूल जाओगे। I hope you remember whatever we have discussed today. Now it's time to revise. And you know what's the best way to revise? Yes, I look like a small teeny tiny creature because the body is huge. The best way to revise is let's play a quiz. The first 3 contestants are getting the super amazing Biotonic t-shirts. And you already know the drill. फटाफट पहुंच जाओ www.menti.com, राइट? क्विज खेलने का है, प्राइज जीतने का है, आपको पता है। कोड डालिए 5723, लिखा हुआ है नीचे 857। डन। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 700 800 बच्चे सारे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। गो टू www.menti.com, enter the code at the bottom bar of the screen to vote. What is the code? नीचे लिखा है 57238573। जल्दी everybody fast। पहले 3 विनर्स को टी शर्ट्स गिफ्ट में मिलने वाली हैं। डन। बुक बहुत जल्दी आने वाली है वर्षा, टेंशन नॉट। अमेजिंग एवरीबडी। प्रिया, मिजार, फ्यूचर डॉक्टर, मासिर, अनुष्का, वर्षा। चलिए एवरीबडी। यस, जिन्होंने लिख दिया मैम ज्वाइन लिख दो, ज्वाइंड मैम, हरिओम, अनन्या। एंड जो पुराने बच्चे नए बच्चों को हेल्प कर दो। हाउ डू यू ज्वाइन? गो टू www.menti.com। डन हो गया। ज्वाइंड एवरीबडी, यू ऑन द चैट सेक्शन। मुझे तो सिर्फ 250 बच्चे ज्वाइन दिख रहे हैं, 700 बच्चे। एवरीबडी ज्वाइन menti.com, कोड 57238573। डन। चलिए, यहां आएगा हमारा क्वेश्चन, डोंट वरी, आएगा। यस, we'll wait for 2 more seconds. Question आ गया। चलिए, which among the following is the major component of blood plasma? Hormones, proteins, oxygen, and carbon dioxide, और last option water. 10 seconds पे जब होगा तो मैं एक अलार्म प्रेस करूंगी, अभी नहीं, 10 seconds पे प्रेस करूंगी, ठीक है? आपको बताऊंगी मैं, आपको बताऊंगी। I will tell you when it's 10 seconds and I will give you the time. I will give you the time and we'll press. Let's have the buzzer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and time is up. वाह वाह वाह,
2%, 16%, 4%, and majority of you, 78% of you have said the correct answer is water. 2% of you have given A, 16% of you have given B, 4% of you have given C, 78% ने D बोल दिया है. Super amazing. चले, correct answer is option D. Water. Plasma is made up of water. It carries hormones and proteins along with enzymes and other nutrients. Let's move on to the next question. Here you go. The red blood cells have a dash shape for increased surface area for gaseous exchange. Is it option number A, irregular? Option number B, biconvex? Option number C, stellar or star-shaped? Or is it option number D, biconcave? Chat मेंटी पे जवाब दीजिए. रेड ब्लड सेल्स की शेप जो मैंने आपको यही दिखाई थी. Yes, you just have 10 seconds. That's it. Perfect. Well done. 5 more seconds. And the time is up. Well done. वाह, आप बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव में कंफ्यूज हो गए. A ऑप्शन 4%, B ऑप्शन 11%, C ऑप्शन 6%, D ऑप्शन 79%. कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़ के जवाब देना है बच्चों. The correct option is option number D, biconcave. Red blood cells have a biconcave shape or a dumbbell shape. Time for next question. Question number 3. Which among the following is absent from mature RBCs? Is it option number A, mitochondria? Is it option number B, hemoglobin? Is it option number C, plasma membrane? Or is it option number D, iron atoms? बताइए. टाइम तो आपका स्टार्ट हो चुका है. जल्दी बताइए. And 10 seconds timer to start now. Super amazing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Wow. Option A 91%, option B 1%, C is 3%, and D is just 5% answered. Well done. Option is A, mitochondria. Mature RBCs lose their mitochondria along with their nuclei. Time to move on to the next question. Question number 4 on your screens. Platelets are also known as erythrocytes, thrombocytes, leukocytes is option number C, lymphocytes is option number D. Come on, Nu, Harsh, Shweta, Princey, Avanish, Arsulan, Bhumika, Kaveri. Nu, आप इतने बच्चे मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ. And 10 seconds remaining. Perfect. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. वाह, बहुत बढ़िया. 392, no 332. ऑप्शन ए सिर्फ 11% बच्चे. ऑप्शन बी 74%. कुछ बच्चे सी में कंफ्यूज हो गए, दिख रहा है 27% अराउंड 8%, डी 7%. कुछ नहीं होता. एक और क्वेश्चन है. ऑप्शन इसका आंसर है बी. थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर अदरवाइज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन. दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज now on your screen. Select the correct option or the option that best represents the correct order of thickest to thinnest blood vessel. Tricky, huh? Artery, venual, arteriole, capillary vein. Artery, arteriole, venual, vein, capillary. C option, artery, arteriole, capillary. या D option, venual, vein या capillary. बताओ. Your time starts now. 10, 9, वाह, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Let's look at the graph. Graph हमारे सामने. A option 5%, B option 7%, C option 71%, and D option is 17%. The correct option is artery. Arteriole, उससे छोटा capillary. Artery is the broadest. Then comes the arteriole, and the thinnest is capillary. इससे पहले कि मैं रिजल्ट अनाउंस करूं, आप एक ताली मारो बेटा.
You must say one clap for Sabya sir. One big clap for Akshay Nagpal sir. Jeevan sir, big clap. Ravi sir, big clap. Kiran sir, big clap. And Mani sir, big clap. Come on guys, ये तो बनता है. और एक clap अर्शद सर के लिए भी कर दो. देखो इतने लोग लगे थे तब जाकर बना claps. आज तो मतलब and one like guys, इतना team work लगता है. Yes. So for all those people who are relentlessly working day and night for each one of you, clap. अब ये नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा. Yes everybody. अब all right. मेंटी था मुझे पता आप देख रहे हो, वेट कर रहे हो, मैं कंपाउंड कर रही हूँ कौन पहले 3 बच्चे थे. That was some fun मेंटी क्विज. पर अभी लीडर बोर्ड रिवील नहीं कर रहे हैं. रुको पेशेंस रखो. Yes, इसलिए पहले क्लैपिंग. सब्र का फल मीठा होता है, टेंशन ना लो. You know that. Let me give you a fun fact. फिर आगे बढ़ेंगे. While we were talking about RBCs, we learned evolution. क्या जो प्रेशर है उसमें बहुत ज्यादा जो है कुछ खो दिया RBCs ने. Yes, वो बेचारे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिना न्यूक्लियस के वो डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो वी नो, ये सब हमें ऑलरेडी पता है कि उनका लाइफ साइकिल ऑफ RBCs भी नहीं होता है. तो व्हाट इज इट? This already. So how does the life cycle of RBC work? Where do they come from and where do they disappear? They are formed in the bone marrow by a process called hematopoiesis. So bone marrow is the manufacturing unit of RBCs. When RBCs are formed, the bone marrow, they have a nucleus. It is very much present. As they get ready to join the mainstream blood, the nucleus and other organelles disintegrate and they become biconcave shape. उससे पहले, as they head and travel through the blood vessels, 120 days उनकी life cycle होती है और फिर क्या होता है? They die. 120 days के बाद is all that they have to live. After that they die. But imagine if all of them died while they were flowing in the blood. Major roadblock हो जाएगा ना. So all these RBCs that are done with their short lives move to an organ called the spleen. That is why the spleen is called the graveyard of RBCs. What do the spleen is an organ that the spleen is going to do with the dead RBCs? It is something I will make a very amazing next episode for. Now it's time for the leaderboard. And वाह वाह वाह. So ये रहा हमारा leaderboard. We have Yash, Om and Ajay. Yash, Om, Bikash, Jenna and Ajay. आप तीनों contact me on Telegram or tell me your identity on the chat section. आप तीनों के पास आ रही है टी-शर्ट्स और बाकी बच्चों को भी जिनको चाहिए आज की टी-शर्ट्स. डोंट वरी, एक और बहुत अमेजिंग प्रोसेस है टी-शर्ट जीतने का. आप सबको आज का लेक्चर कैसा लगा? आज के लेक्चर से आपका बिगेस्ट टेक अवे कैसा था? कितना मजा आया? क्या फील आई? आज के लेक्चर के बारे में एक पैराग्राफ लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो. जो सारी स्टोरीज होंगी उनमें से जो सबसे बढ़िया स्टोरी होगी उसको भी मेरी तरफ से बायोटॉनिक वेदांतु की एक सुपर अमेजिंग टी शर्ट दी जाएगी. सो अमेजिंग गाइस, ऑल ऑफ यू हैव प्लेड वेल. डोंट फील बैड, हार जीत तो लगी रहती है. If you didn't find your name on the leaderboard, don't worry, you will have a lot more chances to win. Study hard, enjoy yourself when you're studying. Play also along with your studies. You will do great. That's it. I hope you enjoyed this lecture. Big clap once again for the entire team. Let me take their names again. So we have Arshad sir, we have Sabyasachi sir, we have Akshay sir, we have Jeevan sir, we have Kiran sir, Ravi sir and Mani sir. Big clap for them, right? Like the lecture. They've all worked really hard to bring this. I'm just the face. The entire team has worked so hard. Stay tuned for many more lectures. आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट फॉर अस. कल से रेगुलर सेशंस. नहीं आओगे तो पिटी खाओगे. यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सेशंस. टेक केयर. बाय.